came to JNU, everybody was writing civil services. So I also wrote civil service. Perks and what are the powers? Power is always for others. It is not for yourself. They have this 24/7 job. Then they're equipped with little bit of facilities and perks which enables them to do their job properly. कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं? ये सारी जो इस तरह की जो नौकरियां होती हैं जॉब्स, इसमें हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं. अगर आप डिसीजन ले लिए ना तो फिर दिमाग शांत हो जाता है. जब तक आप हाँ ना में लगे रहे ना तो स्ट्रेस बढ़ता है. डिस्पोज योर वर्क ऑन अ डेली बेसिस. डिसीजंस होते हैं मोस्टली आईएएस के, वो कभी-कभी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं. वी हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ही सटीक और बहुत सही इंफॉर्मेशन मिलता है. ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो? मैं वारंगल में डीएम था. मेरी गाड़ी के ऊपर नेक्स्ट फ्लाइट्स ने फायरिंग की. हमारी गाड़ी पे करीब 59-60 राउंड्स फायर. इट इज लाइक अ सेकंड लाइफ. इफ यू आर अ इंटरव्यू पैनलिस्ट, कैंडिडेट के अंदर आप क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं? सिंसियरिटी इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स वी लुक इनटू अ कैंडिडेट. बी ऑनेस्ट. आप कैसे भी हो उनको समझने दो. आपसे जो गलतियां होंगी तो गलतियां तो सबसे होती हैं. आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एथिक्स का क्या रोल है? डिसीजन मेकिंग में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है. एथिक्स इज नॉट अबाउट बीइंग करेक्ट ओनली. एथिकल डिसीजन जो होते हैं ना, उसमें आप देखो कि जो टेंटेड पर्पस होता है वो सर्व हो रहा है. रिसेंटली यूएस ने जो टैरिफ अनाउंस किया अपनी कंट्री पे, टैरिफ एक पॉलिटिकल टूल भी बन गया है. आवर इकोनॉमी शुड बी रोबस्ट इनफ टू विथस्टैंड. एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई गोल्डन एडवाइस? यू मस्ट लुक बैक एट योर प्रिपरेशन. एग्जाम को अपने से बड़ा मत बनाओ. Hello everyone, welcome to the Insightaholic. Today, I will be your host with a special episode for UPSC aspirant. Independence Day जो सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक याद है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस की, और एक रिमाइंडर कि हर एक सिटीजन अपने फील्ड में नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है. और इसी स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हुए आज हम बात करेंगे आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर आदित्यनाथ दास, who is a retired IAS officer. He joined Indian Administrative Services in 1987. He also served as the Chief Secretary of Andhra Pradesh, and today he is serving as a advisor to the Irrigation Department, Government of Telangana. Mr. Adityanath Das सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, वो एक पोइट भी हैं. His book Dancing with Dreams उनकी एक soulful poetry collection है, which is based on his real life experiences. In his book, he wrote, "Whatever life unfolds for you, welcome it with a smile." ये पॉजिटिव अप्रोच आपको हर एक चैलेंज के लिए रेडी करता है. तो चलिए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट by welcoming our guest. So, sir, first of all, thank you so much for joining us, and it's my honor to welcome you on our show. हम जानना चाहेंगे brief of your journey when you thought of pursuing the civil services, how you planned your preparation along with the responsibility you have that particular point of time, and when you finally cracked that exam, how was that feeling? See, I studied in a Sainik school. I was a student of Sainik School, Lucknow. And then after that, I did my +2 from a school in Dehradun. And then I joined Banaras Hindu University. I did my graduation from Banaras Hindu University. I wanted to become a forest officer. That was my dream, to become a forest officer, because I have a lot of fondness for hills and nature, etc. But when I was studying in BHU and doing my graduation, around that time only this new system of 3 years of graduation came into the universities, 10 plus 2 plus 3. Before that, 2 years graduation used to take place, then it became 3 years. And BHU used to be, I'm talking of around 80, 84, 79, 80, 84, when the university was very much politically charged, and every year there used to be some disturbance and university will close down. So my 2-year course became a 3-year course, and 3-year course almost became a 5-year course, because we had to undergo too many sanitize in the university. So by the time I graduated, the session was already behind almost by 1.5 to 2 years almost. So I said, okay, let me change the university, and I shifted to Jawaharlal Nehru University. And I did a science graduation. I am a BSc honors in
geology. I like geology subject, so I taken honors in geology and I graduated from that in BHU. But then I shifted to international studies in JNU. And I did fill up the forms for Forest Service. Indian Forest Service is a separate exam. But unfortunately, around that time, when the exams was on, I fell sick and I could not write the exam. So that just what washed off. So after that, I shifted to JNU. When I came to JNU, everybody was writing civil services. So I also wrote civil service. And in my first attempt, I did not crack even prelims. I flunked in prelims. In my second attempt, I passed prelims, but I flunked in mains. So in my last attempt, I cracked everything and I got into IAS. So this is the briefly, how I came to become IAS officer. What changed in life before UPSC and after UPSC? See, tell you before that, I'll tell you a little bit about the preparation part of it. The civil service preparation, I mean, when I qualified in the prelims and wrote mains and I did not get into mains, some of my friends got into and I did not get into, then I just look back at my preparation where I lacked. That is very important in UPSC. If you have cracked in the very first go, very good for you. But if you have not, then one of the things I would like to tell any future aspirant is that you must look back at your preparation. Give yourself, self, assessment. That suppose there is a paper one, you say that after you have written the exam, I'm talking about the main examination means you give yourself some marks, and actually when your marks come, then you see what is the gap, or how close you are. Self assessment is very essential. It is called a self calibration. When you calibrate an instrument, something like that, I did. I calibrated myself after I did not make the means, but I had fair idea that how much marks I'll get, and I was very close to the assessment. So one thing I know about myself is that I've calibrated myself well. My assessment of myself is okay as far as preparation and examination is going. So where I lack those subjects, I have to pick up. So I did well. I got fairly good marks. I did not get through mains, very small margin. And what I lacked was I knew that I have written well in the examination, but I lack substance because I have not studied properly. The facts I was missing. And if I put facts in the way I write, I'll do well. So that was my assessment of myself. And with that, I wrote the last attempt and I got through. So earlier, like it was like 3 attempts. Now, like yeah, it's now 6 attempts. Recently, like the ex RBI governor who has said that India के youth के most productive years giving for the preparation of UPSC exams. They are like attempting 6 to 7 attempts for the becoming a civil servant. And so, like, I just want to know what are your views on that? See, the civil service is very much a sought after examination and a career by most of the young people in the country. The way we are structured, our administration, our society, our legacies, all these things propel our young people to go for this examination. So we can't find fault with that, why they are writing this examination. Everybody wants to, some people may be driven by that, they wield power, and there are people who are driven by the desire to do something for the country, for the society. Some people, they have also the lure of the glamour and all that which they see around with the civil servants. So there are various factors, but we can't find fault with our young boys and girls that why they're writing it. The second thing is that giving that increasing the upper age limit and giving more attempts. Now that is debatable. One thing is there that many of the students who keep on trying, and after every failure their own assessment of in their own eyes goes down, which is very, very harmful for a young mind and a young person. We have to do something. I mean,
Recently, I read somewhere that the UPSC is also thinking of circulating these candidates who have not made through the final, UPSC to other sectors. Yes. Yeah, so that is kind of a good step. Secondly, this is another service. I mean, we have to somehow, this is a public service, and all public service at any level is a public service. Somebody who is working at a lower hierarchy or at a lower strata is not something that he is not contributing to that, This, the power is something, it is like, that, power is something like a electric bulb. You get power and you give light. If you can't do that, you will burst. So power is always for others. It is not for yourself. That should be the first thing we should tell the younger generation, that power, whatever authority or power you see, is not for that person. That is there for the use of the public and society. So it is not something which is a glamour or something. It is something which is a service, public service. So anywhere you are doing a public service. That's it. If that thing comes, then this race towards this, umpteen times and keep on trying, that is different. But then self-assessing yourself and somehow lowering your own stature in your own eyes is not right. That we have to train our young minds that they should not start assessing themselves. That is not right. This exam doesn't completely captures your life story. There's a lot of things in life which is still to come. So don't allow one examination to be a marker of your future. Don't do that to yourself. सर सो इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है लाइक मीडिया और फैमिली एक्सपेक्टेशंस सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि लाइक व्हाट आर द पर्क्स एंड व्हाट आर द पावर्स लाइक अ सिविल सर्वेंट हैज सो इतना ज्यादा हम लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं इस पोजीशन को इसमें क्या होता है ना, सिविल सर्विसेज में क्या होता है, they're all civil service, IAS, IPS, they're all civil service. UPSC सबको सिविल सर्विसेज ही बोलती है. IAS, IPS ऑल इंडिया सर्विस हो जाते हैं. इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस हो जाता है, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस और वेरियस अदर्स. दे ऑल बिकम, there are only 3 all India services right now in the country: IAS, IPS and forest service. तो कुछ ऐसे जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं या IPS ऑफिसर, दे स्टार्ट wielding authority at a fairly young age. When they go and get posted as sub-divisional magistrates or district magistrate, they get some authority at a very young age. Of course, so that at young age, there is already existing structure where they get posted, who are very, very experienced people. And some people, most of them are double in age than the person has got posted, जो उसकी पोस्टिंग हुई है. तो वहां पे एक ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो काफी एक्सपीरियंस कैरी करता है. और एक्सपीरियंस से और उससे क्या होता है, कभी कभी एनालिसिस और इनिशिएटिव में कमी आ जाती है. तो जो एक लड़का या एक लड़की जो उस पोस्ट पे आते हैं, उनके पास यूथ होता है, उनके पास एनर्जी होती है, कुछ आइडियलिज्म होता है, वो सब नहीं खत्म हुआ होता उस वक्त. तो उससे क्या होता है, इन दोनों का एडमिक्सचर होता है. एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर समथिंग विच इज ए कंट्री लाइक आवर्स रिक्वायर्स. एडमिनिस्ट्रेशन जो हो, सेंसिटिव भी हो, इनिशिएटिव भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और स्लगिश नहीं हो, मूव करे, फास्ट मूव करे. इसीलिए इन दोनों का जो सम्मिश्रण होता है ना, उससे एडमिनिस्ट्रेशन को समझा गया कि अच्छा होगा. तो ये हमारे लोग समझते हैं कि ये बहुत पावर है, बहुत ये है. उसके लिए जरूरी क्या होता है कि कुछ चीजें, जैसे कि आईएएस ऑफिसर कोई यूपी का लड़का है या लड़की है, उसे कोई साउथ इंडियन कार्डर मिल गया या नॉर्थ ईस्ट कार्ड मिल गया, जहाँ पे लैंग्वेज भी एकदम नहीं होती. लैंग्वेज तो सीखना कंपलसरी है. वहां पे कुछ चीजें जरूरी होती है ताकि एक तो उसके जो प्रेडिसेसर वहां रहे हैं उनकी लेगेसी, और फिर वो आए हैं, वो मिला करके उसको वहां पे पोजीशन किया जाता है. तो थोड़ी पहचान बनाने के लिए थोड़े बहुत सिंबल्स ऑफ मतलब अथॉरिटी जरूरी होता है. नहीं तो nobody will even recognize, because he or she has to really go in a position where they have to start commanding
lot of people, lot of staff with them. Sometimes they go in a situation, law and order situation, where a lot of people are around. So they should. What helps you there? One thing what helps you is your legacy. That's जो आपके पहले थे उन्होंने कैसा काम किया था. दूसरा एक इमेज की you are young, you will be fair, you will be just, and whatever authority government has vested in you, you will exercise for the benefit and good of the public. और ये काम जो होता है ना 24/7 होता है. ये काम ये 10 से 5 का नहीं होता है. इन सब जगहों पे जो पोस्टेड होते हैं उनके लिए ये महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे उनको दे आर ऑन द जॉब. कभी कभी कुछ हो जाए, दे विल बी कॉल्ड ऑन ड्यूटी. कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, दे विल हैव टू गो. कहीं कुछ हो गया, दे विल हैव टू रश. So they have this 24/7 job. So then they are equipped with little bit of facilities and perks, which helps them, enables them to do their job properly. So सरकार जो भी फैसिलिटी देती है ना, वो उस काम करने के लिए देती है. जो हम काम उस वक्त करते हैं, वो फैसिलिटी सिर्फ इसलिए होती है कि हमें एनेबल किया जा सके कि हम उस काम को बखूबी से कर सके. उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि जैसे मतलब कोई बहुत ही ग्लैमरस चीज. ऐसा कुछ नहीं है. वो हमें काम करने, और अगर हम उसका काम के बदले कहीं और उपयोग करते हैं तो हमारी गलती है. अब कहीं कुछ एकाएक कुछ हो गया तो वी हैव टू रीच इन टाइम. वी हैव टू इमीडिएटली गो देयर. दैट पर्सन, दैट ऑफिसर हैज टू बी देयर, बी ऑन द स्पॉट. तो ये जितनी जो जो पर्क्स या जो फैसिलिटीज होती है ना, वो हमें एनेबल करती है कि हम उस चीज को ठीक से कर सकें. और अगर हम उसको ठीक से करते हैं तो पब्लिक भी उसको रिजेंट नहीं करती. रिजेंटमेंट तब आता है जब हम जो काम जिस काम के लिए मिला है वो नहीं ठीक से करते हैं, तो पब्लिक कहती है फिर तो तब ये चर्चा शुरू होती है कि ये क्या है. अगर हम काम बखूबी करें ना तो आई थिंक पब्लिक एक्सेप्ट्स व्हाटएवर government facilities gives us. So basically, it's a very high demanding job, and it's not a 9 to 5 job, obviously. So if you get a call in night, also कुछ natural calamities वगैरह आ जाती है, you have to be like there, right? So in that condition, like आप कैसे work life balance को कैसे maintain कर पाते हैं? देखिए, जिस एज पे मतलब जब आप जाते हैं सब डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट्स में, तो by the time nowadays people have their own families, वर्किंग वाइफ्स, स्मॉल चिल्ड्रन. तो वो सब उन सब चीजों को देखने के लिए ना यू विल हैव टू हैव सम काइंड ऑफ जॉब एंड पर्सनल लाइफ. यू हैव टू हैव ए बैलेंस इन दैट. अगर आपने इसको इम्बैलेंस किया ना तो आप जॉब भी ठीक से नहीं कर पाएंगे. जॉब के लिए भी जरूरी है ना कि पर्सनल लाइफ से भी आपको वो सपोर्ट मिलता रहे, और आपकी फैमिली को भी लगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, आई मीन दे शुड ऑल्सो फील दैट दे आर ऑल्सो लिटिल बिट पार्ट ऑफ इट. वो बैलेंस करना पड़ता है. अगर आपने वो बैलेंस नहीं किया, सिर्फ जॉब में ही घुसे रहे आप, तो एक तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो हो सकता है कि आपकी जॉब की भी जो आपकी एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वहां भी इफेक्ट करेगी. तो दिस इज सिंपली लाइक यू हैव टू हैव योर, you should maintain a little bit of healthy lifestyle, do your like whatever physical exercises, meet people, and dispose your work on a daily basis. Don't keep it piling up. एक चीज जो मैंने जो अपने पर्सनली से महसूस किया है कि ये सारी जो इस तरह की जो नौकरियां होती हैं, जॉब्स होते हैं, इसमें हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं. अगर आप डिसीजन ले लिए ना तो फिर दिमाग शांत हो जाता है. जब तक आप हाँ ना में लगे रहे ना, टू बी और नॉट टू बी, तो स्ट्रेस बढ़ता है. सो बी डिसिसिव, टेक ए कॉल. आवर जॉब इज टू टेक ए कॉल. जैसे हम सुनते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं मोस्टली आईएएस के, वो कभी कभी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाते हैं. देखिए, पॉलिटिक्स तो हमारे चारों तरफ है. ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स नहीं है. पॉलिटिक्स हमारे चारों तरफ है. बट पॉलिटिक्स इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं. पॉलिटिशियंस के भी होते हैं, उनका होना लाजमी भी है. जनता उनको चुनती है सिविल सर्वेंट्स पे रिप्रेजेंट करने के लिए, कभी कभार प्रेशर डालने के लिए भी. उनको चुना ही इसलिए गया है. हमारी सारी लेजिटिमेसी जो होती है वो तो वहीं से आती है ना, पॉलिटिकल सिस्टम से ही आती है. हम जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारी लेजिटिमेसी वहीं से आती है. तो एक सिरे से नकार देना कि वो सब गलत है, सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट. वी हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ही सटीक और बहुत सही इंफॉर्मेशन मिलता है,
जिससे कि आप अपने डिसीजन ठीक से ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कई सिचुएशंस में, इफ they are in support of you in the field, you can handle situations more efficiently. So you see, it's a कोई भी गलत काम करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है, कोई भी। कोई आपके हाथ पकड़ के कहीं आपसे दस्तखत नहीं कराता है। तो ये उनके ऊपर दोष दे देना कि उनका प्रेशर है, प्रेशर होगा, उनका धर्म है प्रेशर डालना, आपका धर्म है अपनी तरह से काम करना। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। यस सर। सर, तो सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है, इट्स अ वेरी इमोशनल डिमांडिंग जर्नी होती है, जिसमें कई बार एस्पिरेंट्स को खुद पे भी सेल्फ डाउट होता है कि मतलब हम लोग इसको कर पाएंगे क्रैक या नहीं कर पाएंगे। लाइक आई वांटेड टू नो कि आपकी ऐसे प्रिपरेशन में कभी आपको अपने उस पे सेल्फ डाउट हुआ हो, एंड अगर हुआ है तो हाउ हैव यू डेल्ट विद दिस? जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मेरा पहली बार प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ, दूसरी बार मेंस में नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो मैंने अपने आप को एसेस किया। और ये सोचना कि किसी का दिमाग ज्यादा है और किसी का दिमाग कम है, ये सब आई डोंट बिलीव इन दैट। सब वी ऑल फ्रॉम एक परिवेश में, जो भी इस तरह से हमारी जो एकेडमिक कैलिबर होती है, मोर और लेस प्रिपरेशन से क्या होता है ना, यू ट्राई टू होन देम अप। आप जो है ना, अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन क्या होती है, पहले आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको ना थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना चाहिए, और जो भी चीज करें ना उसको डिवोशन से कीजिए। आधा मन या आधा मन हुआ ऐसा मत कीजिए। ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका फुल डिवोशन मांगता है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर जर्नी। आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपने अपनी एक जर्नी तय की है, स्कूलिंग किया है, कॉलेज किया है, यूनिवर्सिटी किया है, फिर यहाँ आए हो। और ये जर्नी फिर 1 साल की होती है कि आपको प्रीलिम्स करना है, उसके बाद मेंस करना है, फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। तो इसमें एक एक मिनट जो होता है ना आपका काउंट फॉर आपको करना होगा सिंसियरली। अगर आपने 100% दे दिया तो आई कैन टेल दैट आपको भी वहां से उतना ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपने कोताही की अपना डिवोशन देने में, तो वहां भी कोताही हो जाती है। तो और बाकी देखिए, लक फैक्टर या जो भी लोग कहते हैं वो तो उसको ब्रैकेट के बाहर रखिए। अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपनी लगन, उसको तो आप ना कम से कम जो आप खुद कर सकते हैं वो तो पूरा कीजिए। सर, लाइक इंडिया में हर साल ओवर 1 मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, उसमें बहुत कम लोग होते हैं एक्चुअल में अपीयर करते हैं, एंड देन लाइक ओनली 0.1 to 0.2% who are like actually made to the final merit list. Is there प्लान बी ऑल्सो कि उनको अपना ऐसा कुछ प्लान रखना चाहिए, अगर मैं ये क्रैक नहीं कर पाया तो ठीक है मैं इस तरफ चला जाऊंगा? देखिए, ये एग्जाम जो है ना, या कोई भी एग्जाम मेरे हिसाब से ये तो कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कंपटीशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, कितनों को एलिमिनेट किया जाए। सो यू आर नॉट अलाउड टू कमिट मिस्टेक्स, दैट इज वन थिंग। मेंटली मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि एग्जाम जब आप तैयारी करते हैं ना, तो एग्जाम के लिए मतलब दिस में भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, व्हाट आई एम गोइंग टू से may appear a little bit odd, but still I'll say, एग्जाम के लिए मत तैयारी कीजिए। आप समझने के लिए तैयारी कीजिए। जो कुछ आपके सामने है ना उसको समझिए, और एग्जाम को थोड़ी देर के लिए दिमाग से परे रखिए। आप एग्जाम को सोच के तैयारी कीजिएगा ना, तो जो अंतिम चीज पढ़ा रहेगा ना वही आपको याद रहेगा, बाकी सब भूल जाइएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि इमीडिएसी होती है कि जाके क्या लिखना है। तो तैयारी करते वक्त अगर ये स्टूडेंट्स अपने दिमाग से एग्जाम को थोड़ी देर के लिए परे कर दें, एग्जाम को साइड में रखें और जो सामने है उसको समझें, आई कैन टेल यू दैट दे विल परफॉर्म बेटर। एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, एग्जाम को थोड़ा परे करो, जो सामने सब्जेक्ट पढ़ो उसको ठीक से पढ़ो, एक साइड में एक कागज रखो, किताब बंद करो और देखो कितना तुम उसको कैसे, हाउ योर मेमोरी इज हेल्पिंग यू टू रिकलेक्ट इट। So what was your routine back then when you were preparing? See, I started preparation, as I said, I was doing my MA also at that point of time. I was doing MA in International Studies. So I had every day I used to do, and I had taken 2 subjects like political science and social studies, which were not my subjects in my graduation. ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, मैथ्स, जियोलॉजी थे, जो सिलसिले में थे ही नहीं। तो मुझे वो एकदम नए सिरे से पढ़ना था, तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ता था। न्यूज़पेपर में रेगुलरली वैसे भी पढ़ता था, मुझे एक आदत थी पढ़ने की, और
और पढ़ाई तभी तक करनी चाहिए जब तक, मैंने कहा ना, समझ आए। जब समझना बंद हो जाए ना तो पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, तब जाके कुछ और करना, जाके चाय पी आइए, जाके कुछ टीवी पे प्रोग्राम देख लीजिए। लग ही जाता है जैसे कि आप 45 मिनट्स तक मतलब आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, उसके बाद देन यू गो फॉर 5 to 10 वो मिनट्स आपको समझ में, कम बैक एंड स्टार्ट। हाँ, वो आपको समझ में आ जाता है कि आप, आंखें तो आपकी किताब पे हैं लेकिन दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। सर, आज की डेट में जब आप अपने करियर को देखते हैं, आपके लिए वो कौन सा सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था जो आपको लगता है कि ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा होगा? देखिए, मेरा मतलब इफ यू आस्क मी कि व्हाट हैज बीन मेरे लिए, हर जॉब मेरे लिए ना, मैं हर जॉब को बहुत ही, कभी मैंने कोई प्रेफरेंशियल, मेरे लिए कोई जॉब नहीं रहा। जो मुझे मिला मैंने उसी को ठीक से करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं ना जिसमें आपको लगता है कि यू गेट मोर सेटिस्फैक्शन। मेरे लिए ऐसा जॉब, मेरा शिलोंग वाला जो पोस्टिंग था ना, नॉर्थ ईस्ट का, वो मेरे लिए बड़ा ही सेटिस्फैक्ट रहा, क्योंकि उसमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो नहीं बन रहा था, मतलब शुरू ही नहीं हो पा रहा था, और मैं भी शुरू शुरू में बड़ा अनविलिंगली गया था, लेकिन जाने के बाद मैं वहां पे जब मैंने काम किया, और आज वो एक पूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलोंग में बना हुआ है, when I look back then I feel कि that was one of the best, most satisfying jobs I did. उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने काम किया, मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में काफी लंबे अरसे तक काम किया। तो हर वो काम जिसमें आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड इफ दैट कम्स आउट सक्सेसफुली, दैट it's like a, you get a positive feed about yourself from your own assessment, which helps. Yeah, this is the benefit of having this kind of job कि आप जो भी decision लेते हो, obviously it will have a large impact. Yeah, it has. All decisions have a large impact, and um, some decisions are like, for me, मेरे लिए, I was lucky in that manner, क्योंकि मैंने फील्ड में बहुत दिन काम किया। जैसे शिलोंग में मैं 2 स्टेट में 6 साल रहा, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहा, करीब 10-12 साल में रहा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि you have to work like, not like only as a secretary, you have to work like a project manager, project director also. So that helps. वो मेरे लिए, I was fortunate to have such jobs. And इसमें बहुत सारी चीजें you can see coming up before your eyes. जैसे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो and then you know how these things happen, what are the bottlenecks, how you can sort them out. So these things are very, very challenging. एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करीब 3 साल था, तो मेरा एंडेवर था कि भाई, मेरा एक ये था कि जो मैंने, मेरा जब एजुकेशन में नहीं था तो मैं यही सुनता था कि टीचर्स नहीं आते हैं, टीचर्स जो है नहीं होते हैं, और वगैरह वगैरह। तो मैंने अपना जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेरा एक गोल ये था कि टीचर्स को ना सेक्रेटरीट घूमने की जरूरत ना पड़े, ऑफिसों के चक्कर वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो कम से कम हमारा सरकार में काम ये होना चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सब शिक्षक होते हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं। उनकी समस्याएं अगर सेक्रेटरीट नहीं हल कर पाए तो फिर तो ये सरकार की कमजोरी हो जाती है। तो मेरा यही एंडेवर था कि कम से कम टीचर जो है सेक्रेटरीट का चक्कर लगा, उनकी सारी समस्याएं वहीं पे हल हो, और उनको पढ़ाने के लिए उनको ना ज्यादा वक्त मिले, दूसरे कामों में उनको ज्यादा ना उलझाया जाए, और फिर तब उनसे कहा जा सकता है कि आपके, और फिर अच्छी एनालिसिस भी हो। आजकल बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पता लग जाता है कि बच्चा किसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, असेसमेंट किस सब्जेक्ट में, किस टीचर के साथ। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टीचर्स तो अपॉइंट कर देते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो बहुत ही जरूरी है, उनका अपग्रेडेशन। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने से ना मुझे लगता है कि जो जो सिस्टम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत जरूरी था। तो मैंने उन सब चीजों पे काम करने की कोशिश की थी, और I mean, we had a group of people who really helped us in that. A lot of new policy and initiatives we could take, कि कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए स्कूल सिस्टम को। तो दैट वाज आल्सो, आई मीन सर, मेरे लिए वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी पीरियड रहा। सर, जैसे कि यू सर्व्ड एज अ कलेक्टर ऑफ वारंगल डिस्ट्रिक्ट, सो
ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट या जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो, इफ यू वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ दैट टाइम. Yeah, you're right. I served as collector Warangal. मैं वारंगल में डीएम था, कलेक्टर फ्रॉम 99 टू 2001. और एक बहुत ही मतलब एक घटना घटी थी वहां पे मेरे टेन्योर में. मेरी गाड़ी के ऊपर नक्सलाइट्स ने फायरिंग की थी. वो एक इंसिडेंट था that kind of, you can say that, that affected me deeply, changed my approach to a lot of things. वो ऐसा था कि मैं वहां पे एक जगह है एटूर नगरम वारंगल में, तो वहाँ गवर्निंग बॉडी ट्राइबल काउंसिल की गवर्निंग आईटीडीए बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, उसकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी और मुझे उसमें जाना था और उसमें मंत्री एमएलए सब लोग जाते हैं. इस मीटिंग की सूचना 30 दिन पहले दी जाती है. 30 दिन के सूचना से मीटिंग होती है. तो मैं गया था इस जगह पे मीटिंग के लिए और ये काफी डीप फॉरेस्ट के अंदर है ये जगह. आई एम टॉकिंग 2001. और जब मैं लौट रहा था वहां से शाम को, तो वहां पे मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, जिसमें मेरे ड्राइवर को लगी थी और मुझे भी एक, मेरे पीठ में भी मुझे एक स्प्लिंटर लगा था. और जैसे हम लोग घुसे थे वहां से, एटूर नगरम से निकले थे, तो फायरिंग शुरू हो गई थी और मुझे लग गया कि ये फायरिंग है. और फिर वहां से फिर हम लोग निकले किसी तरह से. फिर नक्सलाइट्स उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके हमारी गाड़ी रुक गई, चले गए. हमारे ड्राइवर को पूरी लग गई. मेरी जान मेरे ड्राइवर नहीं बचाई, क्योंकि उसके पाँव में गोली लगी थी और वो अपने हाथ से स्टीयरिंग दबाया, हाथ से उसने एक्सीलेटर पे रखा और खुद स्टीयरिंग पे गिर गया. और जहां तक गाड़ी चल सकी चली, फिर रुक गई. तो फायरिंग जोन से उसने निकाल लिया हमें करीब करीब, समझिए. और उसकी टांग तो बच गई. उसकी पूरी टांग में पूरी एक बर्स्ट लगी थी. हमारी गाड़ी पे करीब 59-60 राउंड्स फायर हुए थे. और बाद में पता चला था कि जहाँ पे फायरिंग हुई थी वहां पे 2 स्क्वाड थे, एक फायरिंग स्क्वाड था और एक बॉम्ब स्क्वाड था, और क्लेमोर माइंस भी लगे हुए थे. लेकिन कहते हैं कि जो जिसके हाथ में बटन था उसने बटन नहीं दबाया, क्योंकि मैं टारगेट नहीं था. डीएम वॉज नॉट द टारगेट, टारगेट कुछ और था. तो उन्हें लग गया कि डीएम की गाड़ी है, ये तो टारगेट नहीं है. तो उस बंदे ने वो रिमोट नहीं दबाया था. तो ये समझिए, इस घटना ने ना, इट इज लाइक ए सेकेंड लाइफ फॉर मी, एंड दैट चेंज माई परसेप्शन टुवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे लगने लगा कि हम कहाँ छोटी छोटी बातों में वक्त जाया करते रहते हैं. तो मुझे वो समझ में आ गई कि बहुत सारी चीजें जिन्हें हम बहुत बड़ा बना लेते हैं जिंदगी में, बड़ा बना लायक नहीं है. एंड सो that was one incident. But Naxalites apologized. They sent an apology. They said collector was not the target and he should not leave the district. And it happened in February 2001. And I stayed there for another 6-7 months. Then I got transferred out and I then went for another job. तो और तो कुछ नहीं, लेकिन उसके पहले एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आई यूज्ड टू टूर अ लॉट, एंड वारंगल वाज नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आता था. फिर भी मैं बहुत टूर करता था. मैं हफ्ते में मैं 4-5 दिन टूर पे ही रहता था. उसके बाद इस घटना के बाद थोड़ी मेरी टूर पे बंदिश लग गई, क्योंकि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई और पुलिस और ये और वो, तो थोड़ा मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया. बट दैट वाज वन इंसिडेंट which affected me in other manners also, but made me more, मैं पहले से मतलब स्ट्रेस फ्री ज्यादा हो गया. मुझे उतना स्ट्रेस नहीं हुआ. उसका मुझे डिसीजन लेने में ना, मुझे बहुत सारी चीजों को अलग अलग करने में आसानी हो गई. ये इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट. तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स को इसके लिए भी मतलब हाँ, ये भी हो सकता है. हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है और हुआ है. इट्स नॉट ओनली पर्क्स जो दिख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा. नहीं, और हाँ, मुझे जब गोली लगी और मेरे ड्राइवर को, तो हम लोग आ रहे थे, तो करीब करीब 1 घंटे तक हमने वायरलेस को नहीं ऑन किया. मेरी गाड़ी तो मतलब मुझे एक दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया करीब. उसके बाद जंगल में ही करीब 30-35 किलोमीटर तक पीएचसी था, वहां पे एक नर्स थी, उसने मुझे थोड़ा फर्स्ट एड दिया. मेरे ड्राइवर को, उसका हम लोग वारंगल टाउन आए और
मेरे ड्राइवर को ज़्यादा ज़रूरत थी मेडिकल अटेंशन की, तो हमने उसको मैंने मतलब आई टुक दैट डिसीजन देयर कि ही वेंट टू अनदर हॉस्पिटल, आई वेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में आते तो उसको अटेंशन नहीं मिलते, पूरा नहीं मिलता। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, इसको आप दूसरी जगह, देयर वाज अ बेटर हॉस्पिटल देयर, more well-equipped hospital, and I went to another hospital. And people say that saved his leg. That decision that he was operated in the night, the morning, both of us got shifted to Hyderabad, Nizam Institute of Medical Sciences. I was there for a week, but he stayed there for almost a couple of years. Couple of years. Yes. उसके grafting वगैरह हुई काफी, उसका मतलब his leg was almost blown off. But he saved my life. I owe my life to him. He was also saved. Yeah. He was. At last. Yeah. आपको क्या लगता है कि कोचिंग बहुत कंपल्सरी है, जरूरी है, उसके बिना एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, या मतलब ऑब्वियसली अगर आप डिटरमाइंड हैं तो यू कैन क्रैक द एग्जाम? एक तो ये चीज है ना, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कुछ इंटरेक्शन जरूरी होता है, इन आइसोलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे कुछ और भी एस्पिरेंट्स हैं, तो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, तो उस हिसाब से कोचिंग नॉट अ बैड आइडिया। बट कोचिंग में एक ही खतरा रहता है कि आप एक पैटर्न में फंस जाते हो, उससे बचने की कोशिश कीजिए। आपका अपनी सोच जो है ना, वो एक पैटर्न में ना चले, क्योंकि कोचिंग में अक्सर जो है ना, आपको एक स्लॉट में फिट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। यू शुड हैव दैट मच ऑफ इंटेलिजेंस टू नॉट गेट इनटू दैट, नॉट गेट स्लॉटेड। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि खाने के टीचर्स के साथ, तो जस्ट ऑन द साइड आई टेल यू कि हम लोग कहते हैं ना गुरु देवो भव, तो मेरा कहना होता था गुरु एदो भव, गुरु कुछ भी बन सकता है, कभी एनुमरेटर बन जाता है, कभी पल्स पोलियो बन जाता है, कभी। तो मेरा था कि गुरु को ना गुरु ही रहने दीजिए, आप उसको ना हर चीज में मत लगा दीजिए, तब उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम। जो एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लाइक उनके पास क्लियर रोड मैप नहीं होता, उनके लिए आप 2-3 प्रैक्टिकल टिप्स या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, job is, everybody wants a job in this country. Most of the young people, they need a job, they want a job, and everybody wants a permanent job, ऐसी जॉब जहाँ पे उनको ये रहे। हालांकि अब हो सकता है कि थोड़ी बहुत मान्यताएं बदल रही हों, अब आजकल के स्टूडेंट्स के बहुत सारे एवेन्यूज जो पहले नहीं थे आ गए हैं। मेरे लिए मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले ना यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको खुद क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है। मतलब जो कुछ इस तरह के होते हैं ना कि ये जॉब सोसाइटी जिसको अच्छा मानती है, बुरा मानती है, जो कुछ, उस सबको ना थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फाइनली यू हैव टू लिव विद योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद योर अदर पीपल, योर फैमिली एंड सोसाइटी, बट you have to understand yourself to try for a job। अगर आप किसी गलत जगह पे फंस गए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो सकती है। जैसे कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं बैंक प्रोबेशनर ऑफिसर में बन गया था और मैंने कुछ दिन ज्वाइन भी कर लिया था। आई क्वालिफाइड फॉर बैंक 2-3 बैंक्स, सो आई ज्वाइंड, बट देन आई रियलाइज कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें खुश नहीं रह सकता हूँ, तो आई रिजाइन दैट जॉब। और जब मैंने रिजाइन किया तो दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट इन यूपीएससी। तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के। तो मैंने कहा भाई, अब मैं मतलब जो मुझे नहीं अच्छा लगता है मुझे पता है, अब क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है वो तो मैं कर रहा हूँ ना, मैंने छोड़ दिया। लकीली गॉड्स वे विद मी, आई गॉट इनटू सिविल सर्विसेज, बट I was not worried about that. I was only thinking मुझे वो काम नहीं करना है जो नहीं पसंद है, बात खत्म। तो इसमें आपको अपने से आपको that you will have to understand yourself, आपकी क्या खासियत है, आप में क्या कुव्वत है, आप में क्या कमी है, ये सब अगर आप अपने को थोड़ा बहुत पहचान लोगे ना, it helps। अच्छा सर, समटाइम आपको वो करना ही पड़ जाता है टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, लाइक आई मीन वो भी होता है, मैं बता रहा हूँ, वो भी एक फैक्टर होता है। लेकिन देखिए, अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो। किसी भी चीज में ना अपनी खुशी, तो आप खुश रह के दूसरों को खुश रखो, देखो खुशी स्क्वायर हो जाता है। सर, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो एक एस्पिरेंट्स बार बार करते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं?
एक तो ये कि दूसरों की बहुत सुनते हैं, वो दूसरों की सुनना छोड़ दें, हमारी भी ना सुने। मतलब कहने का ये है कि अपने से असेस करें कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कैसे पढ़ाई का पैटर्न सेट करना है, कैसे आवर्स फिक्स करने हैं, वो खुद खुद तय करें। और अगर नहीं होता है तो किसी से गाइडेंस ले लें, लेकिन ना अपना अपना इनपुट उनका उसमें बहुत जरूरी है। उसने कह दिया कि ऐसे तैयारी करो तो आधे रास्ते निकल गए, फिर पता चला रही गलत ही सब्जेक्ट ही गलत चूज कर रखा है। वो सब ना करें। खुद अपने आप को ना अपने आप क्रिटिकली अपने आप को एसेस कर लें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा किसमें मैं ज्यादा स्कोर करता हूँ। सिर्फ अच्छा लगना ही जरूरत नहीं है, किसमें स्कोरिंग अच्छी है वो तो आपको अपने पिछले से ही पता चल जाएगा। तो वो सब करके ना तब एक सेट करके शुरू कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर मिड कोर्स करेक्शन करना हो तो कीजिए, जैसे मैंने मिड कोर्स करेक्शन किया था कि मैं पढ़ाई तो करता था लेकिन मेरे पास फैक्ट्स नहीं रहते थे। मैं सिर्फ लिख करके चलाता था, फैक्ट की कमी होती थी। फैक्ट की कमी से क्या होता था कि अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। तो फैक्ट्स और लैंग्वेज दोनों आ गए तो आई गॉट थ्रू। सर, बर्नआउट जो आज के टाइम पे एक रियल इश्यूज है, नॉट ओनली इन लाइक basically not only preparing for the exam, even in offices also it's a like a very कॉमन इशू आजकल। तो ऐसे में जब मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है या पढ़ाई मोनोटोनस लगने लगती है, उस टाइम एक लाइक क्या करना चाहिए कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को या एक नॉर्मल स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम्स? मैंने कहा ना कि ये जो होता है ना, ये बर्नआउट क्यों होता है? बर्नआउट इसलिए होता है क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी सारी पढ़ाई एग्जाम, वो नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त करते हो ना उस वक्त आप समझने के लिए पढ़ो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। आप एक गोल की तरफ भागे जा रहे हो और तब आपको लगता है कि गोल तो मिल ही नहीं रहा है और आपने इतनी मेहनत कर ली, तो बर्नआउट होता है। मतलब यू आर राइटिंग फॉर एग्जाम, एग्जाम पास करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, वो सब सब कुछ स्टैक्ड अप तो होता है माइंड में। और एवरी टाइम यू आर नॉट एबल टू रीच, तो वो जो होता है वो एक डिस्पॉन्डेंसी, हताशा हताशा सामने दिखती है। एग्जैक्टली सर, मोटिवेशन कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। हाँ, हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना 100% जब देते हैं ना तो आपको फिर 100% में आपको रिटर्न की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 100% नहीं दिया, देन यू कांट एक्सपेक्ट योरसेल्फ दैट यू विल गेट इट बैक। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक तो ये कि तैयारी एक समतल जगह पे एक सही दिमाग से करो। आप अपने आप को उसमें इस तरह से नहीं झोंक दो कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाओ। उसका ना उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और जब भी कभी लगे ना कि बहुत हो रहा है तो गो आउट, मीट पीपल, फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिलो और एंड देन कम बैक एंड रीअसेस योरसेल्फ एंड डू इट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, गुड काउंसलिंग, लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, वो सब रखो। अपनी सोशल लाइफ को कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर लो, ये जरूरी है इसमें कि आप हाँ मिलते रहो लोगों से, दूसरों से बातें करो कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। वो सब करके ना एक होलसम एनवायरनमेंट में ना तैयारी करनी चाहिए। एक बहुत ही आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में तैयारी करने से ये सब ज्यादा होता है। और कंपटीशन है, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट ए कंपटीशन, लेकिन उस कंपटीशन को प्राइम फैक्टर नहीं बनने दो अपनी तैयारी का। उस कंपटीशन को ना वो कि यू नो यू आर गोइंग टू बीट एवरीबडी, that comes later. First you have to understand yourself and then get out of this mindset. You are not going to beat anybody, you are going to do yourself better, that's all. आप कितना आगे बढ़ रहे हो, दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ नहीं होनी चाहिए, खुद को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। तो दूसरों के साथ ना थोड़ा अपने आप को डिटैच करो, अपने पे कंसंट्रेट करो और तैयारी करो। बट सर, जब आपको दूसरों के साथ जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मोटिवेशन ड्रॉप हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, देन एट द सेम टाइम लोगों से मिलो, तो लोगों से आपको हाँ मिलना वो भी मिलो। चाहिए। मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में जैसे इंफॉर्मेशन लाइक इतना हर जगह इतना इंफॉर्मेशन है, बीट ऑफ एनी सब्जेक्ट, राइट, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, गूगल पे सारा इतना इंफॉर्मेशन है। बेसिकली इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर टॉपिक पे इतना कंटेंट है लाइक। सो ऐसे में एक एस्पिरेंट्स को कैसे पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या स्किप करना चाहिए? देखिए, इसमें है ना कि जैसे आप टॉपिक्स होते हैं, आपके पास सिलेबस होता है, सिलेबस में आपको लिखा रहेगा ये टॉपिक सब्जेक्ट का ले लो या किसी भी चीज का ले लो। तो
इसमें प्रिसीजन की जरूरत होती है, क्योंकि एक एग्जाम का इस एग्जाम का एक स्ट्रक्चर है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में बहुत ही लिमिटेड वर्ड में आपको लिखना है। तो ऐसा क्यों बनाया गया है? ये इसलिए ऐसा बनाया गया है कि फिर मैं वही कहूंगा कि आप अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि आपका दिमाग ना इंपॉर्टेंट चीज पिकअप करे, बाकी चीज को छोड़ दे। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप समझ के किसी चीज की तैयारी करते हो। याद करना और समझने में फर्क है। आप याद कर लो किसी चीज को और समझ लो, हाँ, तो याद मत करो, समझो। जब समझोगे ना तो हमारा दिमाग जो है ना ऑलरेडी इंपॉर्टेंट को पिकअप करता है और बाकी चीज को ना छोड़ देता है, और लेटेस्ट को रिटेन करता है और पिछली चीजों को छोड़ देता है। तो समझोगे ना तो आपको ये चीजें जो है ना, जब आपको जरूरत होगी तो आपको याद आ जाएगी, ट्रिगर करता है उस वक्त वो। अगर आप याद किए रहोगे, रटे रहोगे, तो हो सकता है उस वक्त ना याद आए। समझने की कोशिश करो, समझ के तैयारी करो, याद करके। एग्जाम को अपने दिमाग में ना, एग्जाम को दिमाग में रख के तैयारी मैंने तो नहीं किया था। मैं समझने की कोशिश करता था, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी, ट्राई टू ग्रास्प दैट। कॉम्प्रहेंशन बोलते थे हम लोग, क्या, हाउ टू कॉम्प्रहेंड दैट। कॉम्प्रहेंड करके तैयारी करो। एग्जैक्टली लाइक मेंस तक तो मतलब क्रैक हो जाएगा कॉम्प्रीहेंड करके, बट जैसे लोग मगअप भी करके, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब चीजें मतलब याद करके मगअप करके मेंस भी निकल जाता है, बट देन इट कम्स टू इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो आपकी पूरी पर्सनालिटी देखी जाती है। सो लाइक इफ यू आर अ इंटरव्यू पैनलिस्ट, आप एक किसी इंटरव्यू में पैनलिस्ट हैं, ले रहे हैं बेसिकली किसी एक यूपीएससी कैंडिडेट का इंटरव्यू। सो मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक कैंडिडेट के अंदर आप क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं जो बताती है कि ये एप्लीकेंट ही इज सूटेबल और ही और शी सुटेबल फॉर द सिविल सर्विसेज? देखिए, इसमें हम कैंडिडेट्स में क्या देखते हैं, तो सिंसियरिटी देखते हैं, कितना सिंसियर है। और मिस्टेक से, हर से मिस्टेक होती है। मिस्टेक इज नॉट पेनलाइज्ड अगर आपने कोई गलत जवाब दे दिया, बट did you try it sincerely? So sincerity is one of the major things we look into a candidate. Honesty, and then at ease. You have to be at ease with yourself. बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में आके, तो वो तो बोर्ड वाले के मेंबर्स का भी उनका भी कर्तव्य होता है कि उसको एट ईज करें, बंदे को, उसको पहले रिलैक्स करने दें, क्विजिंग ना करें उनके साथ, क्योंकि वो क्विज का टाइम नहीं होता, उसको समझने का टाइम होता है। जो आपके सामने जो बैठा हुआ है, जो कैंडिडेट, उसको आप, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम और हर, तो आप उसको उस तरह के सवाल पूछें, उसको क्विजिंग ना करें। क्विजिंग से कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और हम उसमें कितना उसने, जैसे कुछ चीजें होती है लोग लिख देते हैं ऐसे ही, डोंट ट्राई टू ब्लफ द बोर्ड, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, उनको समझ में आ जाता है। बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, जो आप हो लेट देम, आप कैसे भी हो उनको समझने दो, लेट देम। आई मीन, पहली बात तो आपको उनको अपने आप को दिखाने समझाने में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सही हो, आप ऑनेस्ट हो, आप सिंसियर हो, आपने तैयारी की इस एग्जाम के लिए, आपने पढ़ा है सिंसियरली, और आपसे जो गलतियां होंगी, तो गलतियां तो सबसे होती हैं, तो गलतियों से बहुत शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, नर्वस भी नहीं होना चाहिए। कोई गलत सवाल हो गया, तो कोई गलत आंसर हो गया, तो अरे हम फिर दिमाग में घूमने लगता है, वो सब निकाल दो। टाइम बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन, हाउ यू हाँ, आराम से बैठो। मैंने देखा स्टूडेंट्स एज पे बैठते हैं कुर्सी के, वो मत बैठो। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कोचिंग लेकर आते हैं इंटरव्यू के ना, उनके साथ क्या होता है कि आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेंड आदमी है, इसने ट्रेनिंग ले रखी है। समटाइम्स सम ये ठीक नहीं है, बोर्ड के साथ ये अच्छा नहीं होता है। आप एक ऐसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जिसमें कि you will be taking a lot of important decisions for others also. You have to be first of all at ease with yourself. आपके बैठने की हाव भाव से, भंगिमा से पता लग जाता है कि आप एट ईज हैं कि नहीं, उसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आपका डिमेनर कैसा है, आराम से बैठो। ऐसा नहीं लगे कि आप जैसे कहीं ऐसे बैठे हो कि जो लोग आपको झपट्टा मार लेंगे, ऐसा नहीं लगे, आराम से बैठो। मॉक इंटरव्यू भी तो लाइक मतलब अगर आप होता है, हाँ मॉक इंटरव्यू होता है, लेकिन मैंने वही कहा कि सब लोग ट्राई करते हैं कि मॉक इंटरव्यू देके ही मेन मतलब फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएं।
वो सब करें। वो देखिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेनिंग इज बैड, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आजकल ठीक है, लेकिन दैट शुड नॉट बिकम द ओवरराइडिंग फैक्टर व्हेन यू आर सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड यू आर व्हाट यू आर सिटिंग, ए बी सी, जो भी आप बैठे हो ना, दे शुड ट्राई टू नो दैट पर्सन एंड अलाउ देम टू नो दैट पर्सन। उसमें क्या गलत है? आराम से बैठो, वहां आपके सामने कोई ऐसे थोड़ी बैठा है कि आपको काट खाएगा। they'll help you to make them understand about yourself। मुश्किल, देखिए मैं नहीं कहता कि बहुत आसान है, लेकिन ये सब चीजें मैं अपने तजर्बे से इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी बहुत इंटरव्यू में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बंदा जो एकदम कुर्सी के एज पे बैठा रहता है कि जैसे गिर जाएगा, तो कहते हैं पहले आराम से बैठो, और उनके बहुत सारे जवाब बहुत स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। तो हमको तो हम पूछते भी हैं कि कोचिंग सेंटर में बताया है क्या, तो कोई कोई तो हंस के बता देता है, तो वी डोंट टेक इट बैड, क्योंकि हाँ है, आजकल लोग कोचिंग में जाते हैं। तो बट व्हाट आई एम सेइंग इज, कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग आदर्श की बात करते हैं, तो आदर्श आपका कहीं दूसरी जगह भी पता चल जाता है। तो अगर आप हो ऐसे तो बी लाइक दैट। अगर आप आदर्शवादी हैं तो हो भाई आदर्शवादी। तो आदर्शवादी सिर्फ एक ही स्फेयर में नहीं, दूसरे स्फेयर में भी होता है, तो वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपका पुट ऑन है कुछ, वो भी पता लग जाएगा, तो पुट ऑन चीजें अवॉइड करो। आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एथिक्स का क्या रोल है? क्या आप कुछ ऐसे रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो जहां आपको टफ एथिकल कॉल्स लेने पड़े हों अपने ड्यूरिंग योर टेन्योर? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में या कभी भी डिसीजन मेकिंग में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना एथिक्स के तो यू कांट डू एनीथिंग। एथिक्स इज ऑलवेज देयर। Ethics is in your behavior with your subordinates, ethics with behavior with the public. Everywhere your ethics plays a role. Or ethics is not about being correct only. Ethics is, to my mind, ethics is much more than that. See, everything we do in bureaucracy, it is for a purpose. Government puts us there for a purpose. They pay us for a purpose. We are there to serve the public, and we are there to do our job as laid down in the guidelines, in the rule books, etc., etc. But all of them have a purpose. तो एथिकल डिसीजन जो होते हैं ना, उसमें आप देखो कि जो पर्पस, इंटेंडेड पर्पस होता है, वो सर्व हो रहा है कि नहीं। और गवर्नमेंट का, मेरा अपना ये मानना है, गवर्नमेंट का डिफॉल्ट मोड जो होता है ना, राइट होता है, हमेशा एथिकल होता है, जस्ट होता है, फेयर होता है। ये सब गवर्नमेंट का डिफॉल्ट मोड होता है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट मोड में जो भी काम करती है, भले ही बाद में उसको कहीं कोई गलत बता दे, लेकिन in an obvious manner, government does right things. Government is there to do right things. Government is there to be non-arbitrary. Government is there to be, fair and just. See, ये सब दिया हुआ है. It is given. Now, are we doing that or not? If you are not doing that, then you are being unethical. Two things. One thing is कि एक तो आपको खुद ही लगता है कि, दूसरा है कि किसी दबाव में आके आप कर रहे हैं। तो आपको कहा कि, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत है, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ऐसी चीजों से ना, जिसमें आपको लगे कि it is unethical or your conscience is not allowing you to do that, then you tell your somebody who is telling you कि भाई this is not right. And if you see your superior, because only somebody who can tell you is not only your superior, sometimes your subordinates can also tell you कि भाई सर ऐसा कर लीजिए तो आपकी जान बच जाएगी टाइप से। कभी सीनियर ये बोलते हैं। तो जो भी आपको ऐसी चीजें करने के लिए कर रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उनको बताइए कि भाई ये ठीक नहीं है, ये करने से ये नुकसान होगा। फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं, तो आप उनसे कहिए कि ठीक है, यू प्लीज गिव दीज थिंग्स इन राइटिंग टू मी, एंड इफ दे गिव इन राइटिंग टू यू, देन यू कैन reply them in writing also, that these are the things I feel is not right. That is one. Still they want you to do the same thing, then they are your superior and they order you to do the things. Then you have two choices, either to do it or you get out of the job at that point of time. If you feel so strongly that no, doing this is going to really harm, some permanent damage may happen, some irretrievable situation may happen, something which cannot be returned back, then you get out of that place. But if you think that it is his point of view,
And that is because your superiors, your political leaders, they have government and public has elected them to take such decisions. And if they insist that, yes, I'm telling you to do it, I'm giving you in writing, do it. So then you can implement it. But there you have to take again a call. कि ये करने से कितना नुकसान होगा. आपके हिसाब से कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो नुकसान ऐसा नहीं हो कि जिसके लिए आप एकदम मतलब इतने ज्यादा आप ये हो जाए कि आप वहां से निकल ही जाए. आपके पास तो वही चॉइस है ना, अगर आप एथिक्स में विश्वास रखते हो या नहीं तो ठीक है, आपके सुपर ने कहा. बट बाय द टाइम ये सब जो ये प्रक्रिया होती है ना, तो कुछ लोग वापस हो जाते हैं. दे डोंट कम टू दैट लेवल. दे सेव द सिचुएशन. मेरे साथ मतलब कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आए कि मुझे लगा कि ये सही नहीं है और मुझसे कहा गया. और जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि मैंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज जरूरी है तो आप पहले मुझसे कहिए कि मुझे ये करना है और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सही या गलत क्या है. अगर आप मुझको नहीं कहेंगे और आप मुझे लिख के भी दे देंगे तो मैं लिख के भी वापस कर दूंगा आपको कि ये गलत है. लेकिन फिर भी अगर आप उसका करना चाहते हैं तो यू आर माय बॉस, सो गिव मी नॉट आई इम्प्लीमेंट इट. But in that case, like the officer, they get transferred to other department. ठीक है, जैसे मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को मैंने हमेशा उनसे कहा, मेरा उनसे हमेशा जब मैं ज्वाइन करता था मैं उनको एक मशवरा देता था कि देखो हमारे नौकरी में कई बार ऐसा होता है कि हमें ओरली कहना पड़ता है कि डू इट समथिंग. तुमको अगर ठीक लगे तो कर दो कि मैं जो कह रहा हूं. नहीं ठीक लगे तो मुझे बोलो कि साहब ये ठीक नहीं है, हो सकता है मैं तुम्हारा नहीं कहूं. मैं फिर भी कहूं तो मुझे ये भी बोल दो कि साहब काइंडली सेंड मी एन ऑर्डर इन राइटिंग. If I send you an order in writing, then please do it because I have given in writing. If I don't give in writing, then both of you might have saved my life. I have saved your life. हाँ, ये मैं हमेशा बोलता था अपने सबऑर्डिनेट्स को कि नौकरी में कई बार ऐसा होता है कि we have to give oral instructions. हर oral instructions गलत नहीं होता है, लेकिन अगर आपको गलत लग रहा है आप पूछ लो हमसे दोबारा. That freedom everybody had. And in my whole career, I never told anyone who was working, under my command and control, that write this or write that. I never told them. I always told them, जो तुमको ठीक लगता है लिखो फाइल पे, जो ठीक लगता है. लेकिन उसके बाद जो मैं ऑर्डर करता हूं उसका पालन करो. अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे आके बता दो कि साहब ये नहीं हो पाएगा मुझसे. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो न बताते हैं कि नहीं करेंगे और न पालन करते हैं. तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो. कहीं डाल देते हैं, फाइल गुम हो जाती है, पता चला कि होता ही नहीं है, तो वो मत करो, वो मैं मना कर. Basically, this is your leadership philosophy. Take responsibility. When I am sitting, somewhere where I am heading the department or I am at the top of the, hierarchy in that level, then responsibility मेरे नीचे वालों की खत्म हो जाती है जब वो मेरे पास आ जाते हैं. When I sign, then I am responsible. Nobody below me is responsible. Everything comes on. I'll defend that. If I can't defend that, why should I sign it? मेरे ऊपर वाले क्या करते हैं? They are responsible. But at my level, when I put my signature, मेरे नीचे वालों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. Then it is all my responsibility, and I own that responsibility. And that I tell my subordinates. This is the way I work. आपके एक्सपीरियंस से कुछ गवर्नेंस के कोर प्रिंसिपल्स बताएं जो ब्यूरोक्रेट को हर सिचुएशन में याद रखने चाहिए. जैसा मैंने कहा ना, गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट राइट जस्ट फेयर होती है. हाँ, ये हमेशा रखना चाहिए. और दूसरा अगर लगे कि गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं कर रही है ना ब्यूरोक्रेट्स को, तो बताना चाहिए कि भाई ये फेयर नहीं है, ये जस्ट नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है. ये तीनों चीजें जो है ना सरकार में नहीं होनी चाहिए. सरकार आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती है, सरकार अनफेयर नहीं हो सकती है, सरकार अनजस्ट नहीं हो सकती है. और इसीलिए कोर्ट वगैरह है जो हमें, जब हम आर्बिट्रेरी काम करते हैं, कोर्ट हमें बताते हैं कि तुमने आर्बिट्रेरी किया, तुमने अनजस्ट किया, तुमने अनफेयर किया. तो जहां तक हो सके वहां तक जानी क्यों चाहिए बात. हम खुद ही क्यों नहीं इन चीजों को देख लें कि भाई हम अनजस्ट नहीं है, हम अनफेयर नहीं है, हम आर्बिट्रेरी नहीं है. और एथिकल तो हमेशा जो है ना अंडरपिनिंग हर डिसीजन का होना चाहिए. सर, आप पॉलिसी मेकिंग के भी सेंटर में रहे हैं, लाइक ड्यूरिंग योर व्हेन यू वर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो काफी उस टाइम पे पॉलिसीज भी बनी थी. तो कुछ नेशनल इश्यूज पे हम बात करना चाहेंगे, आपकी इंसाइट लेना चाहेंगे
तो आज की इकोनॉमी और सोसाइटी में गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, लाइक रेगुलेटर वाला, फैसिलिटेटर, और देखिए, अदरवाइज? कुछ एस्पेक्ट्स में रेगुलेटर, कुछ एस्पेक्ट्स में फैसिलिटेटर भी होना चाहिए। रेगुलेटर, हर उस चीज में रेगुलेटर होना चाहिए जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना एक नहीं हो, वहां पे रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो जो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ डिप्राइवेशन है, जहाँ पे, तो वो पीछे हुए रह जाएंगे। तो रेगुलेटर जरूरी है। और जब इकोनॉमी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाती है ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड फिक्स करने की बहुत जरूरत होती है। इकोनॉमिक इश्यूज में गवर्नमेंट को हमेशा एक रेगुलेटर की जरूरत होती है। इकोनॉमिक, जैसे बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वहां रेगुलेशन। फैसिलिटेटर वहां पे होना चाहिए कि जहां पे सरकार जो है ना एक हेल्पिंग हैंड दे दे लोगों को अपने पांव पे खड़ा होने में मदद मिले। या सरकार उन जगहों पे जहां पे कि लगे कि यहाँ पे अपने से कुछ नहीं पनप पा रहा है, अपने से कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां पे फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो रेगुलेटर फैसिलिटेटर इंटरचेंजेबल है गवर्नमेंट के लिए। और जहां पे हम लोगों की सरकार है, हम लोग अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, तो वेलफेयर स्टेट में ना ये सब चीजें, ये रोल जो है ना बहुत ही मिक्स हो जाता है एक दूसरे में। सरकार एक ऑमनीपोटेंट सरकार बन जाती है, और सरकार का रोल हर जगह दिखता है। आप सड़क पे निकले तो सरकार दिखेगी, आप घर में बैठे हैं तो आप क्या मीडिया पे देख रहे हैं उसमें भी सरकार दिखेगी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां भी सरकार का इनपुट है, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो सरकार है। तो सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर जगह है। तो एक तो सरकार जहाँ फैसिलिटेटर है वहां तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सरकार ने पूरी जगह घेर ली हो। सरकार अगर किसी को फैसिलिटेट करे तो उसको आगे जाने दो। और जहां पे रेगुलेटर है तो वहां सरकार ऐसे नहीं दिखनी चाहिए कि एक के पक्ष में बैठी हुई है। रेगुलेटर का तो काम निष्पक्ष होना होता है। तो ये सरकार के लिए जिम्मेदारी होती है कि जो रोल निभा रहे हैं, और हम लोग तो सरकार के ही तंत्र होते हैं, तो हम जहाँ रेगुलेटर हैं तो वहां निष्पक्ष हैं, जहाँ फैसिलिटेटर हैं तो वहां हम जाके पूरी स्पेस हम ही नहीं ऑक्यूपाई कर लें, जिसको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने दें। इतनी हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि सरकार वहां बैकड्रॉप में चले जाए और वो आगे बढ़ जाए। तो इंडिया में हर साल तो 1.5 मिलियन के अराउंड इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से काफी स्मॉल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गो basically secure the job in their relevant area, right? So how do you see this skill gap? ये आप जो कह रही है ना कि दिस इज अ फैक्ट दैट लॉट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर कमिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, and there is something which is very kind of contradictory itself, because India does have a huge demand for infrastructure growth, etc., and we have a huge workforce, but they are not getting absorbed in these fields. Reasons being that one, that some of these people who are getting out of these training, these institutions or these colleges, engineering colleges, they are not well equipped for those kind of things. उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो भी स्किल लेवल है, वो उतना बढ़िया से नहीं किया गया है। सो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन, उसको देखना पड़ेगा कि ये जितने भी कॉलेज हैं उनकी कैलिब्रेशन हुई है कि नहीं। AICTE का काम है ये करना, एंड दे हैव टू डू इट। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चरली हमारे यहाँ है ना कि जो इंजीनियर्स की जिनकी जरूरत भी है, उनको प्रॉपर प्लेसमेंट या प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं उनको मिलता है। तो वो लोग, और जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फील्ड है ना, वो भी ठीक से इनको रेम्यूनरेशन की बात ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो इनको ठीक से वो नहीं दे पाता है। इसकी वजह से ये है। इसकी इसके लिए दो तीन चीजें करनी हुई। एक तो कि जो अब शायद सरकार कर भी रही है कि आपको ना +2 लेवल से आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। कितने लोग वहां जाना चाहते हैं, कितने लोग स्पेशलाइज करना चाहते हैं, कितने लोग किस किस लेवल के स्किल डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है ना ITI में चले जाए, पॉलिटेक्निक्स में चले जाए, उसके बाद कुछ लोग ग्रेजुएट्स बने, ग्रेजुएट इंजीनियर्स बने। ये सब वहीं से अगर ठीक से उसको देखा जाए, उस लेवल पे किया जाए, और तब देखिएगा कि कितना इंप्रूवमेंट होता है। सेकंड, इकोनॉमी ऑल्सो हैज टू ग्रो।
If economy doesn't grow, it will not provide jobs. And economy, of course, is growing, but the kind of population we have, the young workforce which we are creating every year, we have to expand at a faster growth rate so that, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें बहुत लोगों को, बहुत हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी बहुत उतना रोबस्ट नहीं है, तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा. एक चीज जो मुझे इसमें लगती है कि जो पॉलिसी इंटरवेंशन हो सकता है कि स्टेट्स को, इंडिविजुअल जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्यों को ना इक्विप किया जाए, उनको ऑटोनॉमी थोड़ी मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बहुत सारी इन दैट एस्पेक्ट आई वुड सजेस्ट, मुझे लगता है कभी कभी कि मोर ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स इन इकोनॉमिक फील्ड इज नेसेसरी. दिस इज, जैसे एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन अपने कंट्री में हो चुका है, और दिस इज सेकेंड लेवल की autonomy of taking decisions in economic field, economic sector should now come down from the center to the state more so. थोड़ा उसमें डीरेगुलेशन की भी आवश्यकता है. जैसे कुछ डीरेगुलेशन 90s में हुए, कुछ डीरेगुलेशन और बाद में हुए. अब ये अगला पॉलिटिकल थोड़ा सा ना हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो स्टेट्स के सिस्टम है, स्टेट एंड सेंटर, इसमें थोड़ा इंटरवेंशन होना चाहिए कि स्टेट्स को थोड़ा इक्विप करना चाहिए, कि स्टेट्स को थोड़ा एम्पावर करना चाहिए. दे कैन टेक मोर इकोनॉमिक डिसीजंस, अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन देयर एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. एंड देन ओनली वी कैन सी, तब जो है तब जो अनलीश होगा जो फोर्स है, उसमें काफी जॉब होंगे. अभी बहुत कुछ जो है, बहुत सारी चीजें जो है ना, आर इन ए मैनर स्पीकिंग सेंट्रलाइज है, उनको थोड़ा ना डिसेंट्रलाइज करना चाहिए. Our country is reaping the benefit of demographic dividend. Obviously, we have a larger number of youth who are in that age bracket कि जहाँ पे they are the working population, right? But still, there is a lot of unemployment in our country. So, how do you see that, and what are your views on that? कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं this unemployment? देखिए, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने यहाँ, और जॉब इज वन इशू विच everybody should be more worried about. अगर जॉब क्रिएट नहीं कर रहा है ना, तो बहुत बड़ा तबका जो है ना बहुत डिससेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए वो तो सबसे बड़ी समस्या है. और इसके लिए है ना कि एक्टिविटी, जॉब क्या है, एक्टिविटी. अगर आपके जेब में 10 रुपए हैं या 100 रुपए हैं और आप घर में ही बैठे हुए हैं, तो वो अच्छी इकोनॉमी नहीं है. लेकिन अगर आपके जेब में 1 ही रुपया है, लेकिन आप बाहर निकलते हैं ये सोच के इस 1 रुपये को हम 2 कर लें या 3 कर लें, कुछ काम करके कुछ करके, तो दैट इज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एनवायरनमेंट भी होता है, एक एम्बियंस भी होता है. वो एम्बियंस भी जरूरी है कि लोगों को उत्साहित होना पड़ेगा, लोगों को ना अपने अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज्यादा यकीन होना चाहिए, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे. अपने हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो होगा, हमारे जो इंसेंटिव्स हमारे देश में जो है अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाने के या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में बिजनेस करने के अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब चीजों को ना देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें ज्यादा तेजी से बढ़ें, ताकि ये ज्यादा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें. एक हाँ, इन आवर कंट्री देयर इज ए growth, there is future, so people will start investing in this. The moment you invest, you create jobs, more jobs will be created. वो बहुत जरूरी है. अभी अगर हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो over a period it will become a problem, big problem for us. Yeah, it can basically convert. Yeah, this demographic dividend may turn into something worrisome होने वाला है, और लग रहा है हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ नहीं, मतलब जॉब्स में ग्रोथ नहीं हो रही है. जॉब ग्रोथ को बहुत करना बहुत जरूरी है. So, like, आपके अकॉर्डिंग ऐसे कोई सेक्टर जिस पे इंडिया को ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर, आई मीन, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखिए, हमारे देश की जो नामिंग है डेमोग्राफी, पूरी दुनिया हमको देखती है मार्केट की तरह, तो हम उसको क्यों नहीं, हम अपने ही देश में क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्रोत्साहन दें, क्यों नहीं हम अपने ही देश में, हमारे देश की जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको हम ज्यादा करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हाँ, उन सब पे देना जरूरी है. और इन सब इनिशिएटिव में सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि जो मैंने पहले ही कहा था कि जो
तंत्र है हमारे देश का, ब्यूरोक्रेसी, उसको डिसिसिव होना पड़ेगा। और अगर लोगों को पता चले कि हाँ, हम यहाँ पे डिसीजंस फास्ट होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, तो डेफिनेटली लोग हमारी तरफ ज्यादा आएंगे और अपने ही देश में फिर ज्यादा निवेश होगा। अपने ही लोगों के, जो अपने ही देश का कैपिटल है, अपने ही ज्यादा निवेश होगा। सर, तो रिसेंटली यूएस ने जो टैरिफ अनाउंस किया है अपनी कंट्री के ऊपर, लाइक इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ अनाउंस किया है, राइट, कि हम इंडिया ज्यादा ऑयल बाय कर रहा है, ओके, रशिया से, एंड इट इज सीन इन अ नेगेटिव वे ऑब्वियसली। सो उस व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट फर्स्ट, एंड सेकंड सर, जैसे अभी मैंने जो पढ़ा था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना, राइट, कि वो बहुत डिफिकल्ट है, देयर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंस, कि जो बाकी कंट्रीज पे जब लोग यहाँ पे आते हैं तो दे फील कि हाँ, इट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी अगर हम बात करें तो काफी सारे मतलब जो अप्रूवल्स वगैरह वो इतने इजिली नहीं मिलते हैं। दैट इज वाई मतलब वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा दे हेजिटेट, राइट? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? प्रेजेंट सर्कमस्टांस में देखिए, टैरिफ एक पॉलिटिकल टूल भी बन गया है। कुछ देश इसको यूज करते हैं एज ए मैटर ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी ऑल्सो, जो कि अमेरिका भी फिलहाल कर रहा है हमारे साथ। और इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी, कोई भी नेशन जब उस लेवल पे आता है कि जो 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 बड़े इकोनॉमिक पावर्स की हेजमनी है उसको चैलेंज करता है, तो दे डेफिनेटली फील इनसिक्योर। इन ए मैनर ऑफ स्पीकिंग, यू कैन से दैट इंडियाज ग्रोथ इज मेकिंग लिटिल बिट नर्वस द बिग पावर्स, लाइक वो तो। और इससे क्या होगा ना कि ये इनफैक्ट आवर इकोनॉमी is should be robust enough to withstand these kind of the pressures of tariff। और थोड़ा इम्पैक्ट तो जरूर होगा हमारे ऊपर, इमीडिएट इम्पैक्ट तो होगा ही। जैसे कि मतलब कोई भी अगर इकोनॉमिक कहीं कुछ क्राइसिस होता है, जैसे एशियन, जैसे मलेशिया वगैरह में हुआ था, एशियन टाइगर्स का क्राइसिस हुआ था, या जब लेमैन ब्रदर्स का हुआ था, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो ये भी इम्पैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के, कई ऐसी चीजें जो इस पे इस टैरिफ से थोड़ा प्रभावित होंगी, लेकिन विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और जैसा हमारे देश में हुआ है ना कि विल हैव टू गो बैक टू अगेन आवर ओन सेल्फ रिलायंस पॉलिसीज। अब वर्ल्ड बहुत ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। अगर कोई ये सोचता है कि हम एक तरफा कुछ करके निकल जाएंगे, दैट इज नॉट anymore possible. Whatever impact we have, this impact doesn't go down in, again doesn't create a crisis of jobs etc. वो नहीं होना चाहिए। और how we reorient ourselves so that we withstand these kind of pressures, that has to be immediate reaction on this also। सर, एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन दे हैव जस्ट स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, सो एक कोई गोल्डन एडवाइस जो आप देना चाहेंगे उनके काम आए? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ठंडे मन से करो। करने के पहले अपने आप को देख लो कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, अपना चेसेस चेक कर लो, अपना एक रूटीन बना लीजिए डेली का। और हर रोज जो है ना, आप सब्जेक्टिव पढ़िए, और न्यूज़पेपर तो आप एक कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, क्योंकि और न्यूज़पेपर में ना आप एडिटोरियल्स पढ़िए। एडिटोरियल्स में क्या होता है ना कि आप देखेंगे एडिटोरियल जो लिखे रहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर में लिखे रहते हैं, और बड़े अच्छे ढंग से लिखे रहते हैं। आप एक एडिटोरियल पढ़ लीजिए ना, तो आपको फिर कहीं रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर उसमें कुछ ऐसी चीज है तो उसी में रहता है, तो वो पैटर्न देखिए, हाउ इट इज रिटन। न्यूज़पेपर से एक तो न्यूज भी मिलता है, दूसरा राइटिंग स्किल्स भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें आर्टिकल्स कुछ होते हैं वो पढ़िए, जो टॉपिकल इश्यूज हैं वो पढ़िए, और आप इश्यूज को समझने की कोशिश कीजिए। उसको आप समझिए पहले, क्रिटिकल होने के पहले समझना जरूरी है। हम पहले क्रिटिकल हो जाते हैं ना, तो एक पोजीशन ले लेते हैं, समटाइम दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो पहले समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिए ना पहले। एक बार आपने समझ लिया, तब आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स में आजकल क्या हो गया ना कि हम लोग समझने के पहले थोड़ा क्रिटिकली हो जाते हैं कुछ देख करके। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो एक ना एक लॉपसाइडेड प्रिपरेशन हो जाती है।
उससे अवॉइड कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फर्स्ट. अंडरस्टैंडिंग के लिए माइंड को अनबायस्ड होना पड़ता है. माइंड को कंप्लीटली ना प्रेजुडिस से बाहर होना होता है. देन यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन यू कैन बी a good critic as well as a good, you can also be a good positively, you can contribute to that issue. और एक जो मैं बहुत ही जरूरी बात मैं समझता हूँ कहने के लिए सबको कि एग्जाम को अपने से बड़ा मत बनाओ. एग्जाम होता है, उसको वैसे ही रखो. उसको ऐसा मत बना दो कि भाई मतलब आपकी जिंदगी का बैलेंस शीट उसी पे टिका हुआ है. ऐसा मत करो. क्लियर नहीं हो नहीं, पाया ऐसा तो then मत. don't जिंदगी में get कोई चीज आपसे disheartened. बड़ी नहीं है. हाँ, सब कुछ आपके बाद ही शुरू होता है. ऐसा सोचो. Sir, so last a final message for India's young audience, regardless of the field they choose. मैं I'm not capable of giving messages like that. लेकिन हाँ, I mean, I will tell them that we are in a great country, first of all, and we are great people. We have um, we have people from all kind of people. We have race, culture, religion. Very enriching group we have all around us. Enrich your life. Make yourself, yourself first. That keep yourself in front of everything else, and then go ahead and live your life in this great country. Thank you so much, sir. It was such a pleasure to have you on our channel. Thank you. And the insights you have shared, definitely it will help to the aspirants. Thank you. Thank you so much, sir.